Hello, good morning, dear students. This is your mentor Rajesh Nagdive, and we are discussing the course Permutation and Combination. After discussing all the different kinds of restriction or the problems of permutation, that is NPR, NPN, when n objects are distinct, when some of the objects are identical, some of the objects are together, all those things we have discussed there. Okay, means many varieties of restrictions we have imposed there in the problems. So now in this video I will discuss about a very important kind of restriction, that is alternate arrangement and consecutive arrangement, right? These two types of arrangements are very rare and very important as well. So we will see how such type of problems can be solved where the restrictions are kind of alternate arrangement and consecutive arrangement. So consider the first problem. If 4 boys and 4 girls are arranged, if 4 boys and 4 girls are arranged in a row in such a way that they are alternate. Now see, we are imposing the restriction that the arrangement in such a way that boys and girls are alternate, right? So in how many ways such arrangement can be possible? See, boys and girls are alternate, that means this is boys, girl, boys, girl, boys, girl, boys, girl. So all the 4 boys and all the 4 girls we have arranged in such a way that the boys and girls are alternate, isn't it? Can we start with the girls as well? So girls, boys, girl, boys, and girl, boys. So this arrangement is also the arrangement where the girls and boys are alternate. Fine. So see, as there are 4 boys can be arranged in 4 factorial ways and 4 girls can be arranged in 4 factorial ways. So therefore, the number of ways of this arrangement will be 4 factorial into 4 factorial, whereas the number of ways of this arrangement will be 4 factorial into 4 factorial. Fine. So students, as you can see that by this work our main work is also completed. By doing this work our main work is also completed. या तो ये वर्क आने से हमारा वर्क कंप्लीट होता है या ये वर्क के कंप्लीट होने से हमारा वर्क कंप्लीट होता है. सो देयरफॉर वी कैन अप्लाई द एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग एंड देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ वेज इज 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस, इन दोनों को प्लस कर देंगे बिकॉज ये और में है. करेक्ट है, ठीक. तो दिस इज 4 फैक्टोरियल that is 2 into 4 factorial into 4 factorial, that will be our answer. तो यहाँ पे जो डर है आपको प्रॉब्लम में वो ये है कि समटाइम्स आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सोच सकते हो कि हाँ भाई ये अल्टरनेट अरेंजमेंट है, बॉयज से स्टार्ट कर दोगे या फिर गर्ल से स्टार्ट कर दोगे. नो, आपको बॉयज से स्टार्ट करे या फिर गर्ल से स्टार्ट करे, दोनों केसेस को डील करना है. और यहाँ चूंकि और वर्ड है, दैट इज this is also the alternate arrangement, this is also an alternate arrangement. So because of that we have to add this 4 factorial into 4 factorial in 4 factorial into 4 factorial. Fine. अब यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि मैंने अगर इसको सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कर देता हूँ. तो सेकंड क्वेश्चन में 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कर दिया, ठीक है. 4 boys and 3 girls are arranged in a row in such a way that they are alternate. अब ऐसे सिचुएशन में आप देखेंगे कि गर्ल्स 3 है, बॉयज 4 है,
तो अब यहाँ आपको क्या ऐसे दो केसेस पॉसिबल होंगे, चेक आउट करते हैं। देखिए अल्टरनेट अरेंजमेंट, ठीक है, हम बॉयज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है साहब। तो बॉयज गर्ल, बॉयज गर्ल, बॉयज गर्ल एंड बॉयज 1 2 3 and 4, all the 4 boys we have arranged, 1 2 and 3 all the girls we have arranged, and as you can see that this arrangement where the boys and girls are alternate, so therefore this is okay. And the number of ways of arrangement, 4 boys can be arranged in 4 factorial ways, whereas the 3 girls can be arranged in 3 factorial ways. So can we start with the girls as well here? तो गर्ल्स से देखते, गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स बॉयज, girls boys, all the 3 girls we have arranged, but only 3 boys we have arranged so far. One of the boys is coming over here, right? So as you can see that here boys and boys are consecutive, they are not alternate. Girls and boys has to be alternate, so therefore this case is not possible over here, only this case is possible. So final answer is 4 factorial into 3 factorial. I hope that ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हुआ होगा, करेक्ट है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स अल्टरनेट का एग्जाम्पल। अब मैं कॉन्सिक्यूटिव का एग्जाम्पल्स लेता हूँ। तो कॉन्सिक्यूटिव में क्या होगा उसको ध्यान रखेंगे। तो सपोज आई हैव 7 boys and 3 girls in a class which are to be arranged, which are to be arranged in a row such that no two girls are consecutive, ठीक है, कोई भी 2 गर्ल्स कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए। आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि 2 गर्ल्स के बीच में बॉयज आ जाएगा, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो देखो आपके यहाँ पे किसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, नो रिस्ट्रिक्शन ओवर बॉयज, बॉयज के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होता उसको हम पहले अरेंज कर देते हैं, करेक्ट है। तो आप क्या करो, बॉयज को अरेंज कर दो। तो ये हो गया बॉयज 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 बॉयज, ठीक है। तो 7 boys कैन बी अरेंज इन 7 फैक्टोरियल वेज, करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। और हमारा ये क्वेश्चन बोलता है कि देयर आर 3 गर्ल्स एंड नो 2 गर्ल्स शुड बी कॉन्जिक्यूटिव, लगातार नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब अगर गर्ल यहाँ बैठती है, यहाँ बैठ जाती है तो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होंगे, बीच में बॉय आ गया, यहाँ बैठ जाती है, यहाँ बैठ जाती है, लाइक दैट। तो इन स्टार मार्क में अगर आप देखें कि गर्ल्स को हम बैठा देते हैं कहीं पे भी, 3 गर्ल्स कहीं पे भी इन स्टार मार्क्स में बैठा देंगे तो वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होंगे, करेक्ट। तो हाउ मेनी स्टार मार्क्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, and 8 girls अपना 3 girls can be sit in these star mark in 8p 3 ways, करेक्ट है कि नहीं। हम 3 गर्ल्स को इन 8 पोजीशन में 8p3 वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए अब मल्टीप्लिकेशन रूल लग जाएगा, ये एक वर्क है, ये दूसरा वर्क है, दोनों के कंप्लीट होने पे हमारा मेन वर्क कंप्लीट होता है। सो द टोटल नंबर ऑफ ways of arranging 7 boys and 3 girls such that no 2 girls are consecutive is 7 factorial into 8p3, that is 7 factorial 8 factorial upon 5 factorial, और फिर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या बात समझ में है। तो ये था डियर स्टूडेंट कॉन्जिक्यूटिव का एग्जाम्पल। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स को इसमें चेकआउट करते हैं।
इस एग्जाम्पल को चेकआउट करिए। यहाँ पे क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन 7 BA and 5 BSc students be seated in a row? 7 BA and 5 BSc students seated in a row, so that no two of the BSc students may sit together. So we are imposing the restriction over the BSc students, and there are total 5 number of BSc students. So किसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है? रिस्ट्रिक्शन BA स्टूडेंट्स पे नहीं है। 7 जो BA स्टूडेंट्स है उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होता उनको हम पहले अरेंज कर देते हैं। तो ठीक है साहब, तो ये हो गया BA 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 1 2 3 4 5 6 and 7. So these BA students we have arranged. How many BA students are there? 7 BA students, which can be arranged in 7 factorial ways. So the BA students are arranged in 7 factorial ways. Right. अब आते हैं कि ये जो 5 BSc students है वो ऐसे अरेंज होना चाहिए कि no two of them are टुगेदर नहीं होने के लिए हमको कहाँ बिठाना पड़ेगा? यहाँ अगर वो बैठ जाते तो टुगेदर नहीं है, यहाँ बैठ जाते तो टुगेदर नहीं है। मतलब ये जो स्टार मार्क बनने वाले हैं इसमें आप BSc स्टूडेंट को बिठा सकते हैं जिससे कि वो कोई भी दो BSc स्टूडेंट्स टुगेदर नहीं होंगे। तो स्टार मार्क कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So there are 8 star mark where we have to arrange 5 BSc students which can be arranged in 8 feet 5 ways. करेक्ट है। अब आपने सीधा मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग लगा देना है। तो टोटल नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल इंटू 8p5, that is 7 factorial into 8 factorial upon 3 factorial is the answer. Got the point? ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ जिसमें 3 केसेस को एक साथ लेता हूँ, जिसमें एक अल्टरनेट का केस रहेगा, जिसमें एक कॉन्जिक्यूटिव का केस रहेगा और जिसमें नॉट टुगेदर या टुगेदर का केस रहेगा, और उसी में मैं आपको प्रोबेबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट बता दूंगा। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, देयर आर 6 फिजिक्स and 6 distinct maths books. ठीक है, 6 distinct and 6 distinct maths books. Okay, we are having the 6 physics distinct books and 6 maths distinct books, right? So in how many ways they can be arranged? Number 1, such that all physics books are together. All physics बुक्स आर टुगेदर, एक तो ये केस। ठीक है। दूसरा, नो टू फिजिक्स बुक्स आर अल्टरनेट। ठीक है, नो टू फिजिक्स बुक्स आर कॉन्जिक्यूटिव। नो लिख दिया तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब टुगेदर। नो टू फिजिक्स बुक्स आर कॉन्जिक्यूटिव मतलब दोनों साथ में नहीं आना चाहिए। तीसरा, फिजिक्स बुक्स एंड मैथ्स बुक्स आर अल्टरनेट। और फिर इसी को प्रोबेबिलिटी में कैसे कन्वर्ट करूंगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ, और इसके एक वीडियो जो मैंने बना के रखा है वो भी आपको अपलोड कर दूंगा एप्लीकेशन में। तो यहाँ अब आप देखेंगे कि 6 फिजिक्स बुक्स और 6 मैथ बुक्स है, सबके सब डिस्टिंक्ट है। सो द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, अगर रो में मेरे को ये 12 बुक्स को अरेंज करना है तो वो तो 12 फैक्टोरियल हो जाएगा। फिलहाल यहाँ 12 फैक्टोरियल की मुझे ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जब मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूँगा तो प्रोबेबिलिटी में सिंपली मेरे को क्लासिकल अप्रोच लगाना है प्रोबेबिलिटी का। और प्रोबेबिलिटी का क्लासिकल अप्रोच क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो टोटल नंबर ऑफ वेज या टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ अरेंजिंग दिस 6 डिस्टिंक्ट फिजिक्स बुक्स एंड 6 डिस्टिंक्ट मैथ्स बुक्स इज 12 फैक्टोरियल। करेक्ट है कि नहीं? हाँ। तो इसीलिए वो एन ऑफ एस जो हो जाएगा वो 12 फैक्टोरियल हो जाएगा अगर मैं प्रोबेबिलिटी में आऊँगा तब। ठीक है। फिलहाल यहाँ आते हैं, इसको देखते हैं। ऑल फिजिक्स बुक्स आर टुगेदर, तो ऑल फिजिक्स बुक्स आर टुगेदर का केस को देखते हैं।
तो ये फिजिक्स 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 ये आपका एक बुक बन गया, करेक्ट है। और पहले से ही हमारे पास में मैथ्स के सिक्स डिस्टिंक्ट बुक्स है। तो ये मैथ्स के सिक्स डिस्टिंक्ट और ये वन बुक, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7 डिस्टिंक्ट बुक्स है which can be arranged in 7 factorial ways, correct है कि नहीं? These 7 distinct books can be arranged linearly in a row in 7 factorial ways, but these physics books can be arranged themselves in 6 factorial ways. So this is the number of ways of arranging these books such that all physics books are together, correct है कि नहीं? एक केस हो गया, तो ये केस का आंसर क्या आ गया? 7 फैक्टोरियल वेज इंटू 6 फैक्टोरियल वेज, फाइन। अब आते दूसरे केस के ऊपर, नो टू फिजिक्स बुक्स आर कॉन्जिक्यूटिव। इसका मतलब रिस्ट्रिक्शन हमने किसके ऊपर इम्पोज करके रखा है? रिस्ट्रिक्शन फिजिक्स बुक्स के ऊपर इम्पोज किया है। तो रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर नहीं है? रिस्ट्रिक्शन मैथ्स बुक्स के ऊपर नहीं है। तो जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होता हम उसको पहले अरेंज कर देते हैं। सो लेट्स अरेंज मैथ्स, सो मैथ्स 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 एंड मैथ्स. So there are 6 distinct maths books which can be arranged in 6 factorial ways, isn't it? Now we have to arrange the physics books such that no two of the physics books are together. तो इसका मतलब फिजिक्स बुक्स यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। इन स्टार मार्क्स में आप फिजिक्स बुक्स को अरेंज कर सकते हैं। हाउ मेनी स्टार मार्क्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 and 7. 7 स्टार मार्क्स में हाउ मेनी फिजिक्स बुक्स वी हैव टू अरेंज? 6 फिजिक्स बुक्स, 7p6 वेज, करेक्ट है। तो फाइनली टोटल वेज जो हो जाएगा उसका ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 7p6, दैट इज अगेन 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, बिकॉज 7p6 इज नथिंग बट 7 फैक्टोरियल। तो दिस इज अगेन 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। देखो ये और ये दोनों सेम ही आ गए, तो अगर इन दोनों की प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा ना तो वो प्रोबेबिलिटी सेम आ जाएगा। गॉट द पॉइंट? ओके, नाउ कम टू द थर्ड वन। थर्ड वन तो आपको मालूम ही हो गया है, ये अल्टरनेट की बात कर रहा है। फिजिक्स बुक 6 है, मैथ्स बुक 6 है, तो दो केसेस होंगे। हम या तो फिजिक्स मैथ फिजिक्स मैथ फिजिक्स मैथ फिजिक्स मैथ फिजिक्स मैथ और फिजिक्स मैथ इससे स्टार्ट कर सकते हैं, या मैथ्स फिजिक्स मैथ्स फिजिक्स मैथ्स फिजिक्स मैथ्स फिजिक्स मैथ्स फिजिक्स या मैथ्स फिजिक्स, इससे अरेंजमेंट कर सकते हैं, करेक्ट कि नहीं? 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये तो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, और ये भी हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। ये और केसेस है, इसके आने से भी वर्क डन होता है, इसके आने से भी वर्क डन होता है। सो देयरफॉर प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में एडिशन रूल लग जाएगा। सो द टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 2 इंटू, इनको ऐड कर देंगे तो 2 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, करेक्ट है। तो इसका आंसर मिल गया स्टूडेंट्स 2 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। तो ये तो हो गया आपका पीएनसी का कॉन्सेप्ट, अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट, कोई इशू नहीं है। अब क्या होता है ना, इसको वो प्रोबेबिलिटी में लेके जाएगा। प्रोबेबिलिटी में लेके जाएगा मतलब अगर इसकी प्रोबेबिलिटी P1 ले लिया, इसकी प्रोबेबिलिटी P2 ले लिया, इसकी प्रोबेबिलिटी P3 ले लिया, तो P1 क्या आ जाएगा? P1 बोलो 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल फेवरेबल वेज हो गए, और टोटल नंबर ऑफ केसेस 12 फैक्टोरियल, करेक्ट। ये तो 12 फैक्टोरियल। और P2 को देखते हैं, ये P2 मतलब प्रोबेबिलिटी व्हेन द नो टू फिजिक्स बुक्स आर कॉन्जिक्यूटिव, करेक्ट है कि नहीं? तो P2 क्या हो जाएगा? ये 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल बाई 12 फैक्टोरियल। और P3 क्या हो जाएगा? P3 हो जाएगा 2 इंटू 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 12 फैक्टोरियल, करेक्ट है कि नहीं? तो ये P1 P2 और P3, और फिर इससे ऑप्शन बना देगा। ऑप्शंस के अनुसार देखो P1 और P2 को अगर आप चेकआउट करते हैं तो P1 इक्वल टू P2 है, करेक्ट है। अब फिर आप P1 इक्वल टू P2 के बाद में आप हो सकता है P2 बाई P3 का रेशो निकाल लो, या P1 बाई P3 का रेशो निकाल लो, समथिंग लाइक दैट दे कैन फॉर्म दी ऑप्शंस, करेक्ट है कि नहीं? और फिर आपको चेक करना पड़ेगा कौन से ऑप्शंस करेक्ट है और कौन से ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी वन काइंड ऑफ restriction, that is alternate arrangement and consecutive arrangement, ठीक है।